इस वीडियो के अंदर हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है फिजिक्स का मोशन। इस टॉपिक से एक दो क्वेश्चन हर पेपर में तकरीबन तकरीबन आ ही जाते हैं। जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट इसके अंदर एक्सप्लेन किया हुआ है वो स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। अब स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड एंड नॉट द डायरेक्शन, जैसे मास, स्पीड, वॉल्यूम, वर्क, टाइम, पावर एटसेट्रा। उसी तरह जब हम बात करते हैं वेक्टर क्वांटिटी की, वेक्टर क्वांटिटी हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज द डायरेक्शन। अब वेक्टर क्वांटिटी के एग्जांपल दे रखे हैं जैसे डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, मोमेंटम, टॉर्क एटसेट्रा। ये सब आपको मेमोराइज करना पड़ेगा ताकि एग्जाम के टाइम आप करेक्ट ऑप्शन मार्क कर सको। अब इलेक्ट्रिक करंट have a direction, that's why it's only a scalar quantity and is does not obey the triangular law. Triangular law is not important for simple जो भी ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर्स होते हैं उसके लिए ट्रायंगुलर लॉ इंपॉर्टेंट नहीं है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, स्ट्रेस आर द टेंसर क्वालिटी। इस पे आज तक कोई किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन आया नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पे दे रखा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, स्ट्रेस आर द टेंसर qualities. Distance, distance is the length of the actual path covered by a moving object in the time interval, so it's a scalar quantity. Distance is a scalar quantity, while displacement include the initial and the starting point. It include the shortest distance covered by a body in the definite direction, that's why it's called the vector quantity. So displacement is a vector quantity while distance is a scalar quantity. That's the same thing is explained here, while both the unit is measured through the unit called meter. चाहे डिस्टेंस हो चाहे डिस्प्लेसमेंट हो, दोनों को हम मीटर के अंदर नापेंगे। डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, वाइल डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट दैट ये जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है दैट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। मतलब अगर हम यहीं से चले और इसी पॉइंट पे आ गए तो हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? जीरो। दैट इज द स्पेशल कंडीशन इन दिस। ये चीजें हमें याद रखनी है कि डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। In the similar way, distance is only positive. Distance is a scalar quantity, displacement is a vector quantity. Next concept is the speed. Speed is distance by time. Because distance is a scalar quantity, that's why speed is also a scalar quantity. It is defined as the distance traveled by a moving object in the unit time interval is called the speed. And because distance is a scalar quantity, that's why speed is also a scalar quantity. Why velocity of a moving object is displacement over time, because displacement is a vector quantity which can be positive, negative or zero. That's why velocity can be positive, negative or zero, and it's a vector quantity and unit is meter per second, because the unit of displacement is also meter and a unit of time is second. That's why the unit SI unit of velocity is given as a meter per second. In the similar way, acceleration of an object is defined as the rate of change of the velocity of the object. Is that acceleration equal to change in velocity over time? Change in velocity is given by meter per second square, because change in velocity, displacement, यहाँ पे क्या आ जाएगी? डिस्टेंस की यूनिट आ जाएगी मीटर पर सेकंड स्क्वायर पर सेकंड है, और इसके नीचे एक और टाइम दे रखा है, मीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाय सेकंड। जब ये आएगा तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। ये यहाँ से इसकी यूनिट दे रखी है, इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी अगेन। नाउ if the velocity decrease then the acceleration is negative is called the retardation. Acceleration and retardation, acceleration क्या होगा? जब velocity बढ़ेगी तो acceleration is positive, और जब velocity कम हो जाएगी तो acceleration negative, उसको retardation बोलते हैं। Circular motion, when an object is following the circular path is known as the circular motion. There are two type of motion, that is uniform circular motion where an accelerated motion, जो हमारा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है दैट इज एक्सेलरेटेड मोशन, बिकॉज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज चेंजिंग कॉन्टिन्यूसली थ्रू द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। नाउ द एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी का मतलब होता है कि इतने टाइम के अंदर कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया इन द फॉर्म ऑफ थीटा। The angle subtended by the line joining the object from the origin of the circle in the unit time interval is called the angular velocity. It is denoted by omega, and omega is theta by time, कि उसने कितना एंगल ट्रैवल किया, दैट इज ओमेगा। ओमेगा जो हमारी एंगुलर वेलोसिटी होती है उसको ओमेगा से डिफाइन करते हैं, एंड दैट इज डिफाइंड बाय थीटा बाय टाइम। ठीक है।
लीनियर स्पीड होती है 2 pi r/t, 2 pi r/t, where r is the radius. Here r is the radius, where it is omega r. सो सिंपल फॉर्मूला यहाँ पे दे रखा है v इक्वल टू आर ओमेगा। v इक्वल टू जो v है हमारी लीनियर स्पीड, ठीक है, और r है रेडियस, ओमेगा है एंगुलर स्पीड, और एंगुलर स्पीड को हम डिनोट करते हैं थीटा बाई टाइम से। अगर हमें मेजर करनी है लीनियर स्पीड से एंगुलर स्पीड और एंगुलर स्पीड से लीनियर स्पीड, तो हम इस फॉर्मूला के थ्रू याद कर सकते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट यहाँ पे दे रखा है न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। कितने न्यूटन लॉ हैं? बेसिकली थ्री न्यूटन ऑफ लॉ है। ये जो न्यूटन ऑफ लॉ थे वो न्यूटन ने दिए थे इन हिज बुक प्रिंसिपा इन 1687। 1687 के अंदर बुक प्रिंसिपा, प्रिंसिपिया जो बुक थी, उस प्रिंसिपिया के अंदर न्यूटन लॉ ऑफ मोशन दिए गए थे। जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है विच कहता है कि इनिशियल अ बॉडी रिमेन इन रेस्ट और मोशन अल्टिल और अनलेस नो फोर्स नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन इट। इसको जो फर्स्ट लॉ है इसको गैलियो का लॉ या लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं कि बॉडी रेस्ट में या मोशन में रहेगी जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करती। उसी तरह से इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच द बॉडी अपोज द चेंज ऑफ इनिशियल पोजीशन ऑफ रेस्ट और मोशन। टू टाइप ऑफ इनर्शिया होते हैं, इनर्शिया ऑफ रेस्ट और इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण वो बॉडी की रेस्ट में ही रहेगी और इनर्शिया ऑफ मोशन के कारण बॉडी मोशन में ही रहेगी। फॉर सम एग्जांपल दे रखे हैं। व्हेन अ कार और ट्रेन स्टार्ट सडनली पैसेंजर बेंड बैकवर्ड, क्योंकि वो बॉडी रेस्ट में थी जबकि कार जब चलती है तो एकदम से मोशन में आ जाती है और उनका जो पैर हैं वो मोशन में आते हैं, इस वजह से वो क्या करते हैं, बेंड बैकवर्ड। व्हेन अ रनिंग हॉर्स स्टॉप सडनली राइडर बेंड फॉरवर्ड, क्योंकि राइडर जो है वो मोशन में है और नीचे घोड़ा रुक जाता है तो वो रेस्ट में आ गया, इस वजह से ये चीज़ होती है इनर्शिया की। कोट और ब्लैंकेट इट बीटन बाय स्टिक, ताकि डस्ट पार्टिकल रिमूव किए जा सकें। द फर्स्ट लॉ गिव द डेफिनेशन ऑफ फोर्स। फोर्स क्या होता है? फोर्स इज एक्सटर्नल कॉज विच एक्ट ऑन अ बॉडी चेंजेस ट्राई टू चेंज द इनिशियल स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। ठीक है। मोमेंटम इज अ प्रॉपर्टी ऑफ द मूविंग बॉडी। जो फोर्स है, फोर्स किसी बॉडी को मूव कराने के लिए इंपॉर्टेंट होती है, जबकि मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम इज द प्रॉपर्टी ऑफ मूविंग बॉडी एंड इज डिफाइन द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। कंसीडर आई एम मूविंग, तो मेरी मोमेंटम क्या होगी? एम इन टू वी, कि मेरी वेलोसिटी कितनी है? एक कार है 1000 kg की और वो 50 मीटर पर सेकंड से चल रही है, तो उसकी मोमेंटम कितना हो गया? तो उसका मोमेंटम हो गया 50,000 मीटर पर केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इतना मोमेंटम है उस गाड़ी के अंदर, अगर उसकी टक्कर लगी तो इतनी पावर आपके ऊपर लगेगी। विच इज़ ऑल्सो अ मोमेंटम इज ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स ऑन द बॉडी टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। F equal to force applied, A equal to acceleration produced, and M equal to the mass to the body, then F equal to ma. Newton's second law gives the magnitude of the force. Newton's first law is continued in the second law. Rate of change of momentum of body directly proportional to the applied force. तो F इक्वल टू एम ए, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये कहाँ से आया? सिंपल, अगर ये क्वेश्चन आ गया है F इक्वल टू एम ए, ये कौन से न्यूटन लॉ से रिलेटेड है? तो ये सेकंड लॉ से रिलेटेड है। ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है ना। Newton's second law gives the magnitude of the force as well as Newton's first law is contained in the second law. Newton's third law. For every action there is equal and opposite reaction. For example, recoil of gun, motion of the rocket, swimming, and drawing water from the well, string breakup and drawing water fall back. The principle of conservation of linear momentum. If no external force act on a system of body, total linear momentum of the system of body remain constant. What does it mean? Principle of conservation of linear momentum. If no external force act on a system of body, then the total linear momentum of the system of body remain constant. यही होता है कि जब तक कोई भी बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगी तो उसके ऊपर जो टोटल लीनियर मोमेंटम लग रही है ना वो कांस्टेंट रहेगी। ये होता है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। एज अ कॉन्सिक्वेंस द टोटल मोमेंटम ऑफ बॉडी बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन रिमेन सेम। रॉकेट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। यहाँ से क्वेश्चन बनता है आपका
कि रॉकेट कौन से प्रिंसिपल को फॉलो करता है। तो रॉकेट कौन से प्रिंसिपल को फॉलो करता है? रॉकेट फॉलो करता है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम impulse. When a large force acts on a body for a very small time, then the force is called impulsive force. Impulse is defined as the product of force and time. Impulse is equal to force into time is equal to change in momentum. It's a vector quantity and its direction is the direction of force. Its SI unit is Newton second. Centripetal force. सेंट्रीपिटल फोर्स कब लगती है? जब बॉडी रोटेट कर रही होती है ना, एक बॉडी आउटवर्ड लगती है और एक बॉडी परपेंडिकुलर लगती है. व्हेन अ बॉडी ट्रैवल अलोंग अ सर्कुलर पाथ, वेलोसिटी चेंज कंटिन्यूअसली. नेचुरली एन एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी टुवर्ड द सेंटर ऑफ द पाथ. This the external force required to maintain the circular motion is called the centripetal force. जो बाहर की तरफ लग रही है ना, वो है हमारी सेंट्रिपिटल फोर्स. इफ अ बॉडी ऑफ मास इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ रेडियस v, रेडियस r विद अ यूनिफॉर्म स्पीड v, तो सेंट्रिपिटल फोर्स क्या होगी? एम वी स्क्वेयर बाई आर. ये हमारी सेंट्रिपिटल फोर्स होगी. ये हमारा कोई भी सर्कुलर ऑब्जेक्ट है, ये घूम रहा है. जब भी ये इस पे एक अंदर की तरफ फोर्स लगती है और एक बाहर की तरफ फोर्स लगती है. जो ये बाहर की तरफ फोर्स है ना, ये है हमारी सेंट्रिपिटल फोर्स. और ये किसके इक्वल होती है? एम वी स्केयर बाई आर. ये इसके इक्वल होती है. सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. इन अप्लाइंग द न्यूटन लॉ ऑफ मोशन वी हैव कंसीडर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक सूडो फोर्स होती है इक्वल एंड अपोजिट टू द सेंट्रिपिटल फोर्स. जो हमारे क्रीम सेपरेटर हैं, सेंट्रीफ्यूगल ड्रायर हैं, वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के ऊपर काम करते हैं. एंड रिएक्शन एक्ट ऑन द डिफरेंट बॉडीज. मोमेंटम फोर्स. Rotational effect of a force on a body about an axis of rotation is described in terms of moment of force. Moment of a force about an axis of rotation is measured as the product of magnitude of force and the perpendicular distance of direction of force from the axis of rotation. Moment of force. Moment of force क्या होती है? Force into moment of arm. जो हमारे चाबी पन्ने होते हैं, उसके अंदर हम कौन सा करते हैं? जो हमारे चाबी पन्ने होते हैं ना, उसके अंदर हम मोमेंट ऑफ फोर्स का कॉन्सेप्ट लगाते हैं. ये इसकी एल एक होती है और इस पे हम परपेंडिकुलर फोर्स लगाते हैं. ये होगी हमारी फोर्स और ये होगी एल. तो ये मोमेंट ऑफ फोर्स होती है और ये वेक्टर क्वांटिटी होती है. जब भी हम कोई नेट खोलते हैं ना, नेट खोलने के अंदर जब भी हम इस वेक्टर क्वांटिटी एंड इस एसआई यूनिट इज न्यूटन मीटर. वाई न्यूटन मीटर? बिकॉज फोर्स की है न्यूटन और लेंथ की है मीटर. सेंटर ऑफ ग्रेविटी. द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ बॉडी इज अ पॉइंट. ये एक ऐसा पॉइंट होता है जिस पॉइंट पे हम ये सोच रहे होते हैं कि सारा बॉडी का वेट एक्ट कर रहा है. उस बॉडी के वेट से ही हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैलकुलेट करते हैं. सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ बॉडी डज नॉट चेंज विद द चेंज इन द ओरिएंटेशन ऑफ बॉडी इन द space. The weight of body acts through the center of gravity in the downward direction. Hence, a body can be brought to equilibrium by applying a force equal to its weight in the vertical upward direction through center of gravity. अब बात करते हैं इक्विलिब्रियम की. इक्विलिब्रियम क्या होते हैं? If the resultant of all the forces acting on a body is zero, then the body is said to be in equilibrium. If a body is in equilibrium, it will be either at rest or in uniform motion. If it is at rest, the equilibrium is called static, otherwise dynamic. Static equilibrium is of the following three type: static equilibrium, unstable equilibrium, stable equilibrium, unstable equilibrium and neutral equilibrium. Stable equilibrium क्या होता है? जैसे थोड़ा सा हमने डिस्प्लेस किया फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन, बॉडी क्या करेगी? रिगेन इस और ट्राई टू रिगेन इट्स ओरिजिनल पोजीशन. इट्स कॉल इन द स्टेबल इक्विलिब्रियम. जब हम स्लाइट डिस्प्लेसमेंट कर देते हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन से, बॉडी मूव इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड डज नॉट रिगेन इट्स ओरिजिनल पोजीशन, तो उसको बोलते हैं हम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम. और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम क्या होता है? जब भी हम डिस्प्लेस करते हैं स्लाइट डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द इक्विलिब्रियम, नो टेंडेंसी टू कम बैक टू इज ओरिजिनल पोजीशन और मूव डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, इसको बोलते हैं हम न्यूट्रल इक्विलिब्रियम.
सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑलवेज रिमेन एट द सेम हाइट। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम के अंदर क्या होता है, जो हमारी सेंटर ऑफ ग्रेविटी है ना, सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेम हाइट के ऊपर रहता है। कंडीशन फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम, पहले क्या होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉडी शुड बी एट द मिनिमम हाइट, द वर्टिकल लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉडी शुड पास थ्रू द बेस ऑफ बॉडी, बेस ऑफ द बॉडी। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही, इस लेक्चर के अंदर इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है वर्क एनर्जी एंड पावर। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम जो भी डिस्कस करेंगे टॉपिक, उसका नाम है वर्क एनर्जी एंड पावर। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे कोई ना कोई क्वेश्चन आ ही जाता है पेपर के अंदर। और जो ल्यूसेंट फिजिक्स है या ल्यूसेंट की जो बुक है वो तो एक मास्टर, वो तो एक बाइबल है कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए। वो ये तो बिल्कुल रटी होनी चाहिए। इसके अंदर थोड़ी सी प्रॉब्लम ये दे रखी है कि इसके अंदर कॉन्सेप्ट दे रखे हैं लेकिन प्रैक्टिस क्वेश्चन साथ के साथ मर्ज नहीं करके दे रखे हैं। ये इसके अंदर थोड़ी सी मिस्टेक है। अगर इसके अंदर क्वेश्चन मर्ज कर दिए जाए तो इट्स द बेस्ट बुक। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। थैंक यू।